तो चलिए लास्ट टाइम हमने क्लास में बात कर ली थी सॉयल फॉर्मेशन फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, सिर्फ प्रोसेस बाकी थी। तो फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो फैक्टर्स मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल। ओके, सो फर्स्ट वन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सेकंड वन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू soil. So the weathering process we have already discussed in previous session, and the formation of true soil that is discussing. So in factors, so one is given by the Dokochiu and second one is given by the Jenny. So which formula means which factors given by the Jenny, that is the updated factors. Okay, because which the Dokochiu is given, so that is only some factors are there, and in there which is given by the Jenny, so that person added some extra factors which is really exist. So is there the equation will make equation would made as equal to f and this bracket, like as climatic means environmental climate, which is, and after that organism and vegetation, after that relief and parent material on time. So that is a factor, and after that may be continued, means maybe more factor are there will be available in future if anyone want to search. So that is the factors. So which factors we are having? They are divided in two class. And which two class? One is passive and second one active. So passive means which provide the base of active factors. Okay, which provide the base to active factors, means where the active factors work on them. So which factors responsible for enhance the active factors? So that is known as passive factors. So in passive factors there comes parent material, relief or time. So parent material is the matter. Okay. So upon the parent material, the weathering process will be happen, and after that other factors will be work on parent material. So whatever that is the matter. Second one, relief or topography, means what's the condition situation of the area. Okay, so condition situation of the area, that is depends, that enhance the active factors, like as whether the summer weather are there. So in the summer some factors will be work, so means that weather of the specific of area. And relief, so relief means that is undulating form or maybe digging form, and maybe rock type of form. So that is the form of means structures. So they relief enhance the some factors and enhance the weathering process, means relief are very important. And third, on top, on time. So the time, because all factors will work in some time, and after that some time it shows the some results. So there are two groups, passive and active. After that, in passive form, first one, parent material. So we have studied about the already parent material. What is? ठीक means where's the starting, means where the rock is formed and was the main rock, like as igneous rock, that is the parent material. And uh, after that effect of many chemical process and physical process, means by the weathering, it will convert some other form, that is known as sedimentary and metamorphic. Okay, so that is the other forms which is results of changes. So that parent material, it's also divide into group, and the group is sedentary and transported. So sedentary means that is the some that comes by the result of some changes and that enhance the other activities. Okay, so formed in original place, it is residual parent material. Okay,
after the transported, so means by the weathering process, and that weathering will be happen by the gravity force, by the water force, by ice slidings, and by wind. Okay, so that is the factor. So every means every transported process which has the specific name, and that by gravity, if the material transported by the gravity, so that is known as colluvial. By water, so means alluvial, marine, and lacustrine. By ice, so glacial. And by wind, aeolian. So it has the different names. But in physical weathering, you have also seen that factors by the gravity, water, ice, and wind. So that is a factor means which enhance the weathering process, means comes in physical weathering process. Okay, so it has a specific name. You have to learn it, that I have discussed in last class. So that is colluvial, alluvium, and lacustrine, and marine. So that all classes has been discussed earlier. चलिए, तो अब यहां तक की हम बात कर चुके थे कि हमारे पास वेदरिंग प्रोसेस में वेदरिंग प्रोसेस बता रहे हैं। अगर हम ट्रू सॉइल की बात करें, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन की बात करें, तो उसमें दो प्रोसेस थी। दो प्रोसेस में एक तो वेदरिंग थी, उसके बाद ट्रू सॉइल का निर्माण था, और ट्रू सॉइल के निर्माण के बाद हमने फैक्टर्स जाने। तो सबसे पहले फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो वो फैक्टर्स डोकोचियो ने दिए और जेनी ने दिए। जेनी ने जो फॉर्मूला दिया उसमें कई कुछ और चीजें भी ऐड कर दी। तो जितने फैक्टर्स वर्क करते थे उन सभी फैक्टर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो पैसिव में और एक्टिव में, है ना। तो पैसिव में सबसे पहले आता था पेरेंट मटेरियल। तो अगर पेरेंट मटेरियल की बात करें तो उसको भी दो टुकड़ों में बांट दिया, और एक हो गया सेडेंटरी, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेड। और ट्रांसपोर्टेड यानी कि जिसके भी द्वारा बहा करके चीजें इधर उधर की जा रही हैं, वो चाहे कारक हवा हो या फिर बर्फ हो या फिर पानी हो, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल हो। तो इन सभी के द्वारा जो भी ट्रांसपोर्शन किया जा रहा है, तो उसका एक अलग अलग स्पेसिफिक नाम है, और उसको उस नाम से जानते हैं। तो उन सभी नाम के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, जैसे कि कोलुवियम, एलुवियम, है ना, लेकस्ट्रीन, मरीन, एओलियन, इओलियन। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बाद दो चीजें और मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, जो कि था एंडोडायनमोमॉर्फिक सॉइल एंड एक्टोडायनमोमॉर्फिक सॉइल। तो यहाँ पर दो तरीके की सॉइल थी, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। इनके बारे में बात करते हुए हम आज का आगे का सेशन शुरू करते। सो एंडो मीन्स विद एडवांस डेवलपमेंट and excessive leaching, and the influence of parent material on soil characteristics gradually diminishes. अब यहाँ पर एंडो कहता है कि एंडो क्या है, तो ये क्या है, ये अधिकतम लीचिंग, यानी कि वाटर के फोर्सेस से या फिर कोई अदर सोर्सेस से, ठीक है, यहाँ पर लीचिंग पॉसिबल होती है। और ये पेरेंट मटेरियल को क्या है, इन्फ्लुएंस करता है फॉर वेदरिंग प्रोसेस एंड फॉर अदर डीमोनाइसिस प्रोसेस। ओके, या मतलब हल्का सा टूटने के लिए या बिखरने के लिए या फिर अदर फैक्टर्स को वर्क करने के लिए क्या है, एक कंडीशन तैयार करता है। तो उस कंडीशन से यानी कि एनहेंस होकर के, यानी कि वेदरिंग प्रोसेस होकर के, जो भी वो चाहे क्लाइमेटिक फैक्टर को एनहेंस करना हो या फिर वेजिटेशन को एनहेंस करना हो, तो इस तरह की सॉइल्स क्या होती हैं, एंडोमॉर्फिक में आती हैं। लेकिन एक्टोडायनमोमॉर्फिक में क्या है, अब यहाँ पर जो पेरेंट मटेरियल टूट चुका है, ठीक है, यानी कि वेदरिंग प्रोसेस हो चुकी है, इसके बाद वो अब मैटर पड़ा हुआ है। अब उस मैटर पे प्रोसेस होगी, है ना, उस मैटर पे प्रोसेस होगी, और वो मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, चेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एसिड इग्नियस रॉक्स। अब एसिड इग्नियस रॉक्स मींस आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस ये मैटर पड़ा हुआ है, जैसे कि ग्रेनाइट है, रायोलिनाइट है। तो ये क्या होगा, ये उत्पादन करेगा, यानी कि बाय द केमिकल प्रोसेस, बाय द फिजिकल चेंजेस, whatever which things happen doesn't matter, but it will produce light textured soil, है ना, एल्फी सोल्स जिनको कहते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि एसिड इग्नियस रॉक्स
यानी कि ये प्रोड्यूस करता है लाइट टेक्सचर सॉइल यानी कि एल्फी सोल्स। बेसिक इग्नियस रॉक्स है, अगर बेसाल्ट है तो ये फॉर्म करता है वर्टी सोल्स को। अगर बेसिक एल्यूवियम और एओलियन मटेरियल्स है तो ये प्रोड्यूस करता है कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल को, है ना, जिसको हम लोग एंटी सोल्स और इंसेप्टी सोल्स के नाम से भी जानते हैं। The nature of the element released during decaying of rocks has a specific role in soil formation. And Si and Ai forms the skeleton for the production of secondary clay minerals. तो यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो इसके कण अदर तरह के क्ले मिनरल्स को बढ़ाने में सहायक। यस, हेलो स्टूडेंट। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा, मेरा एक फोन आ गया था थोड़ा इम्पोर्टेंट, इसलिए। चलो, अभी आवाज आ रही है? अभी आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड। अब जो नेचर में यहाँ पर जो अगली लाइन कह रही है वो ये कह रही है कि जो नेचर में जो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, जैसे कि जब हम बात करें तो जहां से मिनरल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हर एक रॉक में कोई ना कोई मिनरल्स पाए जा रहे हैं, जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तो मस्ट है। और यही अधिकतर वेदरिंग प्रोसेस में भी हिस्सा लेती हैं, ठीक है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट को बनाने में इन्हीं का हाथ होता है। इनके साथ क्या होता है, जैसे हमने पहले बात की थी तो कुछ फेरोसिलिकेट्स थे और कुछ नॉन फेरोसिलिकेट्स थे। तो यानी कि इनके साथ मैग्नीशियम, फेरस
ये अदर एलिमेंट्स भी इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे रॉक्स की, तो वहां पर जब मिनरल्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने ये क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो जैसे ही जैसे नेचर में एलिमेंट्स टूटते हैं या फिर वो सॉइल की प्रोसेस स्टार्ट होती है फॉर्मेशन की, तो उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स भी रिलीज होते हैं, और वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल निभाते हैं। क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, दैट इज द सोल ऑफ सॉइल। ठीक है, क्योंकि किसी भी सॉइल में अगर एलिमेंट्स नहीं होंगे या फिर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, तो सॉइल क्या है, डेड सॉइल है। जैसे कि आप देखें तो कई जगह पर वेजिटेशन नहीं दिखता, है ना, या फिर सॉइल है एकदम ब्लैक है, या फिर बिल्कुल व्हाइट पड़ी हुई है, ठीक है, या फिर सैंडी सॉइल है, दूर दूर तक कुछ नहीं, कोई पौधा नहीं, तो ये क्या है, वहां पर क्या है, वो सॉल नहीं है, वहां पे एलिमेंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, और सबसे मेन चीज क्या है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सॉइल में नहीं है, वो सीधा है तो लीच हो जाती है या फिर इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, पानी रुकता नहीं जमीन में। तो इसकी वजह से अगर वहां पर कुछ एलिमेंट्स होंगे भी, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक, ये बहुत मेन चीज है। तो एलिमेंट्स और वाटर क्या है, ये सोल है सॉइल की, यानी कि जान हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम आयंस, उनकी जो फॉर्म्स हैं जो चेंज होती हैं, वो क्ले मिनरल्स का रोल निभाती हैं, यानी कि वो मिट्टी में मिनरल्स के तौर पर रहते हैं। Iron and manganese are important for imparting red color to soils and oxidation and reduction phenomena. अब अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करें, रिडक्शन प्रोसेस की बात करें, ठीक है, और या फिर अगर हम कहीं मिट्टी में कहते हैं कि ये मिट्टी लाल रंग की हमको दिख रही है, जैसे कि हम लाल मदाएं भी कहते हैं हिंदी में, ओके, so that is the effect of iron and manganese, or sometimes that question will be put up in your exam and competitive exam also. Okay, the red color of soil due to which elements presence, it shows which element presence. So you have to select iron and manganese. Okay, so that is, and sodium and potassium are important depressing agents for day and humus colloids. अब अगर हम बात करें यहाँ पर ह्यूमस की, तो ह्यूमस एक खुद में एक चीज है जो कि बहुत ही ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, डार्क मटेरियल होता है ये, और थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल होता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, ये क्या होता है कि डीकम्पोजिशन, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से तैयार होता है। ठीक है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये ह्यूमस कोलाइड्स यानी कि सोडियम पोटेशियम क्या है, डिस्पर्सिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमस क्लोराइड्स को फैलाने के लिए क्या है, सोडियम और पोटेशियम वर्क कर सकता है। ऐसे ही अलग अलग चीजों के बाद अलग अलग इफेक्ट हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब सेकंड नंबर, यानी कि हमने अभी पैसिव चल रहा है हमारा, और पैसिव में क्या आया, फर्स्ट आया पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल डिवाइड हुआ टू फॉर्म में, सेडेंटरी एंड ट्रांसपोर्टेड। तो हमने सेडेंटरी एंड ट्रांसपोर्टेड दोनों पढ़ लिए। ठीक है, और उसके बाद उसी में आया एंडोडायनोमॉर्फिक एंड एक्टोडायनोमॉर्फिक, तो उसको भी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या आ गया हमारा, रिलीफ और टोपोग्राफी, दैट इज द सेकेंड पैसिव फैक्टर्स। So the relief and topography sometimes are used as synonymous terms. ठीक है, ये अधिकतर क्या होते हैं, कई बार सिनोनिम टर्म्स के रूप में, यानी कि सिनोनिम यानी कि समानार्थी वर्ड, समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, दे डिनोट द कॉन्फिगरेशन ऑफ द लैंड सरफेस, एंड द टोपोग्राफी रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन एलिवेशन ऑफ द लैंड सरफेस ऑन अ ब्रॉड स्केल। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी क्या है, ये लैंड सरफेस को डिनोट करता है ना, लैंड सरफेस के बारे में बता कि सतह कैसी है, यानी कि कहीं पठार है या कहीं पहाड़ है, तो इन चीजों की बात होती है। ठीक है, टोपोग्राफी में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन एलिवेशन ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, ऑन अ ब्रॉड स्केल। अब एलिवेशन क्या है ये, so second one, relief or topography. The relief, so they denote the configuration of the land surface.
अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस भी है रिलीफ और टोपोग्राफी के बीच में, लेकिन अगर हम इनको एक जैसा वर्ड भी मान लें तो कोई बुराई नहीं है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास, अब ये विन्यास क्या होता है, तो सॉइल के पूरे टोटल ऊपरी सतह के मेजरमेंट से हमारा इससे मतलब है ना, कि उसकी आकार की कैसी है, उसका प्रकार कैसा है, वो सब चीजें। और जब टोपोग्राफी की बात होती है तो वो भी क्या है, वो भी एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट्स, यानी कि कहीं गहरा है, कहीं ऊपर, कहीं ऊंचाई है, तो वो भी हम क्या करते हैं, वो भी हम सरफेस की बात कर रहे हैं। तो दोनों को हम एज अ सिनोनिम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग भी हो सकता है। चलो, अब यहाँ पर बात करते हैं द प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी डिजिग्नेशंस एज गिवन इन FAO। तो यहाँ पर क्या है, FO की गाइडलाइन है ना, जिसके आधार पर उन्होंने लैंड सरफेस को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि फ्लैट टू ऑलमोस्ट फ्लैट, है ना, तो यहाँ पर स्लोप्स कितने परसेंट होगा, 0 से 2%। In the same way, gently undulating 2 to 5% slope, undulating 5 to 10%, rolling 10 to 15%, hilly areas 15 to 30%, and steeply dissect. So that is more than 30% with moderate range of elevation less than 300 meter. Okay, and after that the mountains. So there is slope is uh, slope is more than 30%, and एलिवेशन मीन्स रेंज ऑफ एलिवेशन जो हाइट होगी वो क्या होगा, मोर देन 300 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माउंटेन्स की बात करें, पहाड़ की बात करें, तो 300 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले को हम माउंटेन कहते हैं। ठीक है, जिसपे स्लोप 30% से ज्यादा हो सकता है, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 70 हो। ठीक है, और स्टीपली डिसेक्ट की अगर बात करें तो इसका भी स्लोप 30% से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसकी हाइट 300 मीटर से कम रहती है। ठीक है, तो जिनको हम स्टीपली डिसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये माउंटेन्स की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन ये क्या है, स्टीपली डिसेक्ट है, इनकी हाइट 300 मीटर से कम रहती है। तो इस तरह से कुछ टोपोग्राफी को इन्होंने डिवाइड किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आप इसमें से कुछ फॉर्म्स याद कर सकते हैं, और आप ये याद कर सकते हैं कि इसको स्लीपी डिसेक्ट कितने मीटर में होता है, और माउंटेन्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो माउंटेनियस फॉर्म है वो कितने मीटर हाइट के ऊपर काउंट होती है। ओके, तो दैट इज अबाउट सम टोपोग्राफी। अब here's the given the different type of thing like a soil formation on flat to almost flat positions. After that soil formation on undulating topography. तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं और फिर इस फैक्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ऑन लेवल टोपोग्राफी टोपोग्राफिक पोजीशंस ऑलमोस्ट द एंटायर वाटर रिसीव्ड थ्रू रेन percolates through the soil. So under such condition the soil formed may be considered as representative of the regional climate, and they have normal soil with distinct origins but vast and monotonous level, and with little gradient often has impaired drainage conditions. अब यहाँ पर जो सॉयल फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर हम नॉर्मल सॉयल लेयर्स की बात करें, मैं आपको एक बार यहाँ पर लेयर्स के बारे में दिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार वो वर्ड यूज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इसका जब चैप्टर आएगा तो हम उसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे उसकी। चलिए, यहाँ पर आप लोग देखिए कि दैट इज द डायग्राम ऑफ soil layers. Okay, that is soil layers. So let's see the first organic horizon means that is the upper two layers, means that
used in crop productions, okay, and trees grows the layer. So which one the main means surface layer? So that is total organic layer, ठीक है, means soil. Soil is the upper soil layer, ठीक है, which used by the crop. तो ये अपर लेयर हमारी 2 से 3 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है, जिसमें एक तो पहली लेयर हो गई जो कि एग्रीकल्चर काम आती है, दूसरी लेयर तक भी रूट्स जाती हैं। रूट्स किस में जाती हैं? वो बड़े प्लांट्स की रूट्स जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ऊपर से, आप चौथी लेयर में आ जाइए, ठीक है। अब चौथी लेयर में क्या है? देयर इज कोर्स मिनरल horizon from which iron, aluminium, clay minerals and carbonates have been removed or lower horizons. अब ये क्या हुआ है? ये यहाँ पर मिनरल्स इकट्ठा हुए थे, ठीक है। अब सॉयल फॉर्मेशन कहाँ शुरू होती है? इसी मिनरल फॉर्म से शुरू होती है, यहाँ मिनरल फॉर्म। अब यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है, यानी कि आपको पहले से पता है कि मिनरल्स में कुछ कंटेंट पाए जाते हैं और जो कंपोनेंट होते हैं उन पे वाटर के फॉर्म से या फिर कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, कई गैसेस फॉर्म्स में चेंजेस होते हैं। भाई हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन है, मीथेन है, तो ये क्या है? ये भी केमिकल चेंजेस करते हैं, उनके कंपोनेंट साथ मिलते हैं। या वाटर है, तो वाटर कई बार क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होती है वाटर के साथ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसके ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है या फिर कोई चीज है या वेजिटेशन होता है, तो वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद उसके ऊपर की लेयर्स में कन्वर्टिंग होनी शुरू हो जाती है और लेयर्स ऑर्गेनिक मैटर का एक्युमुलेशन होता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ है वो इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और उससे क्या होता है? हमारी ऊपरी सॉयल बनती है, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है। बताया जा रहा था आपको, सॉयल फॉर्मेशन ऑन फ्लैट और ऑलमोस्ट फ्लैट पोजीशन, यानी कि मिनरल्स टूटे हुए पड़े हुए हैं बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में, उस पर बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है उस पर। तो धीरे धीरे क्या हुआ? वो और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए और उस पर ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक सॉयल फॉर्मेशन हो गई, है ना। तो यहाँ पर अगर सॉयल लेयर्स की हम बात करें तो देखो, उसके बाद अगर 5वीं लेयर्स में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत महीन ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा और क्ले मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आयरन ऑक्साइड है, फिर बहुत ही ज्यादा डीकम्पोज्ड पैरेंट मटेरियल है। डीकम्पोज पैरेंट मटेरियल जो कि सीधा आप रॉक से कनेक्टेड कह सकते हैं, ठीक है, एकदम वहां पर क्या है कि सॉलिड मटेरियल है सारा, ठीक है। और पैरेंट मटेरियल सारा बड़ा हुआ है, यानी कि पूरे रॉक्स हैं, ठीक है, वहां पर। जैसे कि अगर इसको हम और दूसरे फॉर्म में देखें तो यहाँ पर ये जो है, देखो, ये आपको दिखाती है कि ऑर्गेनिक, टॉप सॉयल, सब सॉयल, पेरेंट मटेरियल और बेड रॉक। तो देखो, इसको इन्होंने यहाँ पर इस तरह कुछ लेयर्स में डिवाइड कर दिया। इमेज काफी क्लियर नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट गूगल से आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए काफी है। तो देखो, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज होती है वो ऑर्गेनिक लेयर में भी टॉप लेयर यूज होती है, ठीक है। लेकिन अगर बिगेस्ट ट्रीज की बात करें तो बिगेस्ट ट्रीज के लिए ऑर्गेनिक लेयर की दूसरी और टॉप सॉयल लेयर, यानी कि जो तीसरी और चौथी है, तो यहां तक रूट्स ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद सब सॉयल आती है और उसके बाद पेरेंट मटेरियल होता है, और पेरेंट मटेरियल के बाद बेड रॉक होती है, यानी कि पहले आपको स्टोन्स मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे और उसके बाद फिर एकदम ठोस चीज, यानी कि बिल्कुल टाइट मटेरियल मिलेगा आपको, जिसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं, जो कि कूल्ड पेरेंट मटेरियल है, ठीक है। तो इस तरह से सॉयल लेयर्स में हमारी सॉयल डिवाइड होती है। चलिए अब यहाँ से हम बंद करते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी चीजों को। चलिए बात करते हैं सॉयल फॉर्मेशन, अंडुलेटिंग और टोपोग्राफी। द सॉयल ऑन स्टीप स्लोप्स आर जनरली शैलो, स्टोनी एंड have weakly so developed profiles with less distinct horizontation. It is due to accelerated erosion which removes surface material before it has to time develop. Reduced percolation of water through soil is because of surface runoff and lack of water for the growth of plants, which are responsible for checking of erosions and promote soil formations. Okay.
तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, ये वेदरिंग प्रोसेस को हमें बता रहे हैं, सेम चीज, कि जहां पर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी होगी, जहां पर एलिवेशन है यानी कि हाइट्स हैं, ठीक है, स्लोप्स है, तो वो क्या है, वो एनहेंस करता है स्लाइड्स को। अब वहां पर क्या होता है कि स्लाइडिंग होती है, और स्लाइडिंग के चक्कर में क्या होता है, कई बार जो मिनरल्स हैं, जो रॉक्स हैं, वो टूटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे उस पर क्या होता है, फिर उस पर प्रोसेस होती है, पानी बरसता है, बहुत कुछ इस तरह से, कहीं वेजिटेशन हो गया, ठीक है, उस पर फिर ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं, तो वो सब धीरे धीरे क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे सॉयल में। तो इस तरह की सॉयल फॉर्मेशन होती है। तो चलिए अब इन चीजों को छोड़ते हैं और तीसरा फैक्टर पकड़ लेते हैं। तीसरा फैक्टर हमारा क्या था पैसिव में, वो था टाइम। अब टाइम को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि टाइम क्या कहता है। तो सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस रिक्वायरिंग थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डेवलप अ मेच्योर पैटर्न। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन जो है बहुत धीमी प्रक्रिया है, जो कि हजारों साल ले लेती है एक अच्छी सॉइल बनने में। यानी कि आज जो हमारे पास सॉइल अवेलेबल है, इसको तैयार होने में कई हजारों साल लग चुके हैं, और हजारों क्या, मैं कहूंगा लाखों साल लग चुके हैं, ठीक है। और अभी भी बहुत जगह की सॉइल्स अभी भी डेवलप नहीं हुई हैं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी हम डेवलप कर लें, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए हम उसे थोड़ा सा जल्दी डेवलप कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसे ग्रोइंग के लायक बना लें, है ना। लेकिन ये जो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें काफी टाइम लगता है, और ये कई हजारों और लाखों वर्षों के डीकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन के बाद होता है ऐसा। तो the period taken by a given soil from the stage of weathered rock like a regolith up to the stage of maturity is considered as time. The matured soils mean the soils with fully developed horizons. It takes hundreds of years to develop an inch of soil. मतलब सिर्फ 1 इंच अगर मृदा का हम देखें तो डेवलप होने में कई सैकड़ों साल लग जाते हैं। The time that nature devotes to the formation of soils is termed as pedologic time. यानी कि एक सॉइल फॉर्मेशन बनने में, यानी कि 1 इंच सॉइल बनने में जितना समय लगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेडोलॉजिक टाइम कहते हैं, ठीक है। यानी कि सॉइल फॉर्मेशन में यूज हुआ टाइम, वो क्या है, पेडोलॉजिक टाइम है। तो यहाँ पर जो आपको ये आपको एक इंडेक्स दिख रहा है जहाँ पर स्टेजेस हैं और करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर वेदरिंग की, यानी कि एक ड्यूरिंग टाइम स्पेन यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है, यानी कि सॉइल डेवलपमेंट की प्रोसेस, और उसके करेक्टर्स दिए हुए हैं। यानी कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल होता है। पेरेंट मटेरियल पे कोई भी चीज का इनिशिएशन होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जुवेनाइल, सो वेदरिंग स्टार्टेड बट मच ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल इज स्टिल अनवेदर्ड। यानी कि फिर एक जुवेनाइल की स्टेज आती है, और इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है कि वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल मैटर अब भी बाकी रहता है, सिर्फ स्टार्ट ही हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर दैट थर्ड स्टेज आती है वायराइल की, जिसमें क्या होता है कि जो वेदर्ड मटेरियल, यानी कि जो जिसपे वेदरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसपे वेदरिंग चल रही है, वो क्या होता है, अच्छे से डिकम्पोज हो चुका होता है, और क्ले कंटेंट, यानी कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो सारे मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स का विखंडन होना शुरू हो जाता है, यानी कि ठीक है। उसके बाद प्रोसेस आती है सेनाइल, यानी कि डीकम्पोजिशन रीचेस एट अ फाइनल स्टेज। अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन जो हो रहा है, जो विघटन चल रहा है, वो फाइनल स्टेज यानी कि आखिरी अवस्था में होता है, और सिर्फ वो मिनरल्स रह जाते हैं क्ले निर्माण में, जो कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, जो कि जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। सिर्फ ऐसे मटेरियल बचते हैं। उसके बाद फाइनल क्या होता है कि सॉइल डेवलपमेंट कंप्लीटेड अंडर प्रिवेलिंग एनवायरमेंट्स। तो ये सॉइल फॉर्मेशन की, यानी कि वेदरिंग की कुछ स्टेज हैं, ठीक है। हमने वेदरिंग पढ़ी थी, तो वेदरिंग में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ी थी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया कि वेदरिंग में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो जब पहले वेदरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि नहीं, स्टार्ट भी नहीं होती है, विदाउट स्टार्टिंग जो मटेरियल पड़ा रहता है, वो क्या है, वो हमारा इनिशियल अवस्था है, यानी कि आरंभिक। उसके बाद जुवेनाइल आता है, यानी कि वेदरिंग स्टार्ट हो चुकी है।
फिर वायराइल आता है, यानी कि जो है मिनरल्स जो है वो वेदरेबल हो चुके हैं, यानी कि उनका टूटना शुरू हो चुका है और ठीक ठाक से डिकम्पोज भी हो चुके हैं और हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेनाइल में आता है कि ठीक है, अब डिकम्पोजिशन बिल्कुल लास्ट में है और आधे से ज्यादा चीजें डिकम्पोज हो चुकी हैं, यानी कि क्ले बन चुकी है हमारी, लेकिन क्या है, कुछ मिनरल्स अभी बचे हुए हैं और डिकम्पोजिशन यानी कि वेदरिंग प्रोसेस चालू है। और फाइनली क्या होता है कि सॉइल हमारी डेवलप हो जाती है। तो ये कुछ स्टेजेस में उन्होंने डिवाइड किया है। तो ये सैकड़ों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। तो बस टाइम में आपको इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स की। तो अभी तक हमने 3 फैक्टर्स यानी कि पैसिव फैक्टर्स को खत्म कर लिया। अभी तक पैसिव फैक्टर्स से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं। If you have any question from passive factors, you can ask. और एक बार और रिपीट कर देता हूं कि कल के लिए आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जो भी आप वीडियोस वगैरह भेज सकते हैं आप भेजिए, ठीक है। और जो लोग आसपास के रीजन से हैं, ठीक है, यानी कि 50-100 किलोमीटर की दूरी से हैं, वो आ सकते हैं और जरूर आए, ठीक है। आपको यहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा, है ना। तो अगर कोई आना चाहता है तो अपना नाम मुझे जरूर दे दे और बाकी लोग वीडियो का प्रिपेयर करें, है ना, और वो भी मुझे शाम तक भेज दें। चलिए, शायद यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग का। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं, एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। अच्छा चलो, इतना तो आप लोग बता सकते हो कि अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया आपको। देखो, पीएच डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पर, ठीक है। क्योंकि जो पीएच होता है ये माइनस, यानी कि ये लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन आयन का लॉग होता है और ये माइनस में होता है, ठीक है। तो पीएच डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितना है, और ये डिपेंड करेगा कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कैसा है, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है, उसमें सोडियम आयंस ज्यादा है या एल्यूमिनियम आयंस ज्यादा है या सिलिकेट्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि पीएच कितना होगा, है ना। तो सॉइल का पीएच अपर लेयर का ही होता है, कहीं हाई होता है कहीं लो होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताता है सिर्फ कि जो हाइड्रोजन आयन है जमीन में उनकी सांद्रता कैसी है ना। तो जितना जितना सॉइल पीएच लो होता है, ठीक है, उतनी सॉइल कैसी होती है, एसिडिटी होती है, ठीक है, उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है सॉइल में। और जितना पीएच हाई होता है उतना ज्यादा एल्कालिनिटी एंड सैलिनिटी बढ़ती है सॉइल में, ठीक है। नहीं, इसका टोपोग्राफी में ही सॉइल पीएच जो होता है वो सॉइल का ही होता है, ठीक है। आप इसकी इनर लेयर का पीएच नहीं लेते क्योंकि उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि पीएच किसके लिए है, पीएच प्लांट्स के लिए होता है ना। यानी कि जो आप वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, जो आप फ्रूट प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो पीएच उनके लिए है, पीएच हम लोग के लिए है। यानी कि एज अ ह्यूमन हम भी फूड कंजप्ट करते हैं, ठीक है, और कई तरीके के ड्रिंक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारी बॉडी कैसा पीएच चाहती है, हमारी बॉडी भी एक तरह का पीएच लेती है। यानी कि कोई भी चीज हम खाते हैं उसका एक पीएच होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसमें कैसा है। तो हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन शायद तब आपकी क्लास नहीं थी। तो अगर हम पीएच की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें भी कैसा चाहिए, बेसिक चाहिए, ठीक है। यानी कि ना वो एसिड मटेरियल हो और ना ही उसका पीएच सैलिनिटी या अल्कलिनिटी को शो करे।
लेकिन बेसिक से ऊपर थोड़ा सा सेलाइन हमारे बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए हम हर चीज में थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, चीजों को सेलाइन बनाता है। दूसरा, हम उसमें बेसिक वाटर यूज करते हैं। वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है। तो वो उसको क्या करता है, अगर कोई भी मटेरियल अगर वो एसिड फॉर्म में भी है, तो अगर हम कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो हम नमक वगैरह यूज करते हैं वो उसको क्या बनाता है, सेलाइन और एल्कलाइन बनाता है, ठीक है। इसीलिए हम उसमें बाकी गरम मसाले जो होते हैं उनको कम यूज करते हैं। जैसे आपने चिली यूज किया, तो चिली क्या है, ये जो इसमें कैप्साइनिन पाया जाता है, ठीक है। चिली में चरपराहट के लिए कैप्साइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करता है, ये उसमें एसिडिटी बढ़ाता है ना। लेकिन ग्रीन चिलीज में ऐसा नहीं होता। तो तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, हल्का सा नमक ऐड करते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेसिक चीजों को बेसिक बनाता है, यानी कि पीएच सामान्य करता है। और सामान्य पीएच का मान होता है 7, ठीक है। अगर किसी भी चीज का पीएच 7 है तो मतलब दैट इज द नॉर्मल, ठीक है। और 7 से अगर अपर होता है तो मीन्स सेलाइन। फिर 8.5 से अपर होता है तो मीन्स एल्कलाइन, ठीक है। और अगर वो 7 से नीचे होता है, ठीक है, तो वो आता है लाइट एसिडिटी। और उसके बाद वो 4 से ज्यादा नीचे आ जाता है तो मीन्स हाई एसिडिटी, ठीक है। तो पीएच के स्केल होते हैं। तो इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग काफी पसंद करते हैं गर्मियों में पीना, जैसे कि कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया। लेकिन ये सब कभी भी आप इनका पीएच चेक करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा एसिडिटी मतलब एसिडिक फॉर्म होती है इनके अंदर, ठीक है। पीएच का कंसेंट्रेशन लो होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो कंसेंट्रेशन होता है वो लो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो हमारे बोन्स को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इसीलिए जब भी आप देखिएगा, कभी गौर करिएगा अपने आसपास लोगों को जो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, उनकी आप बॉडी स्ट्रक्चर देखिएगा कभी, वो थोड़े से थुलथुले से होते हैं। ऐसे गाल आपको झूलते हुए से नजर आएंगे, जैसे लगता है कि जो जो स्किन है वो कहीं ना कहीं एकदम सेट नहीं है, ठीक है। और हाथ पे थोड़ा सा लूज से रहते हैं। तो वो दूर से देख के आप जान जाएंगे कि नहीं, इसको जंक फूड और ये सब चीजें ज्यादा पसंद है ना। क्योंकि वो क्या होता है, वो एसिडिक फॉर्म है, आपके बॉडी में दूसरी तरह के हार्मोन्स क्रिएट करता है, आपकी बोन्स को कमजोर करता है, ये सब चीजें। तो इसलिए सॉइल पीएच, इसी तरह प्लांट्स के रूट्स जो होती हैं, ये रूट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन ये डिपेंड करता है पीएच के ऊपर, है ना। अब जैसे कि पीएच अगर 7 अपर होगा, यानी कि सोडियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जब सोडियम आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा अगर हो जाएगा तो क्या होगा कि रूट्स में जो पानी अवेलेबल है, यानी कि मैंने इससे पहले क्लास में टर्गर प्रेशर की बात चल रही थी, है ना, टर्गर प्रेशर। तो वहां पे क्या होता है कि अगर सोडियम आयंस का एक्यूमुलेशन अगर सॉइल में ज्यादा हो गया, है ना, यानी कि पीएच 8.5 या +8.5 पहुंच गया, तो क्या होता है कि रूट्स वाटर को सॉयल से अब्जॉर्ब करने में असक्षम हो जाती हैं, बल्कि सॉयल रूट्स में जो ऑलरेडी वाटर अवेलेबल होता है उसको भी अब्जॉर्ब करने लग जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पौधा सूख जाता है। और यही सेम कंडीशन एसिड में होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्लांट अब प्लांट जो है वो रेडी है, एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा एसिडिक फॉर्म उसमें पहुंचती है तो क्या होता है, प्लांट एकदम ऐसा लगता है जैसे कि वो जल गया हो, है ना। तो इसका बेटा इनर लेयर से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसा है सॉयल की अपर लेयर में। और जो कि डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स के सिलिकेट्स आयंस या फिर सोडियम आयंस की अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप सिर्फ वो चीजें ज्यादा यूज करें भोजन में जो कि बेसिक हैं, जिनका पीएच 7.0 के आसपास होता है ना। तो चलो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्टिव सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर्स की। तो active soil forming factors are those which supply energy that acts on the mass for the purpose of soil formation, and these factors are climate and vegetation, यानी कि बायोस्फीयर।
तो बायोस्फीयर में जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें एज अगर हम फैक्टर ले लें तो वो सारे एक्टिव फैक्टर्स हो जाएंगे, चाहे वो गैसेस हो या फिर चाहे वो सनलाइट हो, ठीक है, या फिर क्लाइमेटिक इफेक्ट हो, वेदर है हमारा, तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, बायोस्फीयर में आएंगी। चलिए, तो फर्स्ट इसमें था क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द टाइप एंड रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। द डोमिनेंट क्लाइमेट्स रिकॉग्नाइज्ड आर, यानी कि कुछ डोमिनेंट क्लाइमेट्स हैं, कुछ ऐसी जलवायु की कंडीशंस हैं जिनको पहचाना गया है, वो यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि एराइड क्लाइमेट। तो एराइड क्लाइमेट क्या है? द प्रेसिपिटेशन हेयर इज फॉर लेस देन द वाटर नीड एंड हेंस द सॉइल रिमेन ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ ईयर। अब इसका कहने का मतलब है एराइड क्लाइमेट यानी कि सूखी जलवायु। सूखी जलवायु में क्या है कि जितनी पानी की जितनी ज्यादा जरूरत है वहां की मृदा को, वहां के पौधों को, तो उतनी बारिश नहीं होती और वो मृदाएं जो है वो कैसी रह जाती हैं, सूखी रह जाती हैं, ठीक है। Second one, humid climate. The precipitation here is much more than the water need, and the excess water results in leaching of salts and bases, तो followed by the translocation of clay colloids. अब humid climate क्या है कि यहाँ पर आवश्यकता से ज्यादा बारिश पाई जाती है, ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा बारिश पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब पानी की अधिकता होती है तो लीचिंग बढ़ जाती है। लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, यानी कि पानी का सीधा जमीन के अंदर की लेयर में चला जाना। तो लीचिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जिसमें क्या होता है कि कई सॉइल के मुख्य तत्व भी पानी के साथ घुल करके नीचे लेयर्स में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ओशियनिक क्लाइमेट, ठीक है, यानी कि समुद्रिक जलवायु की बात करें तो मॉडरेट सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग, मतलब हमेशा बारिश होगी लेकिन कभी कम होगी तो कभी ज्यादा होगी, ठीक है, ये मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएशन आते रहते हैं रेनफॉल में। इसके बाद बात करें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात करें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में क्या होता है, द मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, यानी कि एक मध्यम वार्षिक वर्षा होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। और विंटर्स और समर्स में बेसिकली क्या होता है, ड्राई और हॉट होता है। जैसे कि अपने यहाँ की बात करें तो अपनी तरफ क्या है, ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की कंडीशन, यानी कि हमारे पास जाड़ा भी है, गर्मी भी आती है, और लगभग इन दोनों सीजन्स में बारिश ना के बराबर होती है ना। इसके बाद कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये इतने क्लाइमेटिक कंडीशन है जिनको पहचाना गया, जो कि वेदरिंग प्रोसेस और कई तरह के फॉर्मेशन में हिस्सा लेती हैं, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से पढ़ लेंगे, मैं सबको एक एक बाई एक करके डिस्कस नहीं करना चाहता, आपके एग्जाम्पल के लिए दो तीन हो चुके हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट इफेक्ट्स द सॉइल फॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये दो तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन, एक तो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, जैसा कि मैंने टेम्परेचर की बात की थी, है ना। तो आपने वेदरिंग प्रोसेस में जब टेम्परेचर की देखा था तो टेम्परेचर किस तरह से वो एक्सपेंड करता है, ठीक है, पेरेंट मटेरियल को स्क्वीज करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो टूट जाती है कुछ समय के बाद, है ना, या स्पेस क्रिएट हो जाता है, या फिर उसमें स्क्रेचेस आ जाते हैं, जिसके भी यहाँ पर धीरे धीरे उनकी बाइंडिंग लूज हो जाती है और वो कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, है ना। तो इस तरह के इफेक्ट्स पड़ते हैं जो कि क्लाइमेट के द्वारा होते हैं। उसके बाद दूसरा था प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब वार्षिक वर्षा, वही चीज है। So that is most important among the climatic factors as it percolates and moves from one part of the parent material to another. अब ये जब कोई चीज ऊपर से काफी ऊंचाई से, भले ही एक बूंद हो पानी की, जब वो गिरती है तो चोट पहुंचाती है सरफेस को। तो जब चोट पहुंचाती है तो इस तरह से जब बहुत सारे कण गिरते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊपरी लेयर पर इफेक्ट करती है और वहां से बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को निकाल करके उनको अपने साथ बहा करके कहीं एक जगह इकट्ठा करती है। इस प्रोसेस में सालों लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, एज अ डेल्टा, यानी कि जहां पर वो इकट्ठा करती है, जो चीज बनती है नदियों में, वो डेल्टा कहलाता है और वहां पे बहुत सारे ऐसे रॉक मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उसी में से टेम्परेचर हो गया, ये भी क्या क्लाइमेटिक फैक्ट है। तो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन,
ये सभी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और दोनों ही वर्क करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर ये कैसे वर्क करते हैं, ये दोनों चीजें हम बात कर चुके हैं वेदरिंग वाले पार्ट में। ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन, तो ऑर्गेनिज्म भी कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन में और वेदरिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इस सब चीजों के बारे में भी हम बात करके, ये भी कौन से फैक्टर्स में आता है, ये भी एक्टिव फैक्टर्स में आता है।